اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم سحر علی قریشی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوئے ہم آج آتش عالم کی ایک نئی قسط کے ساتھ۔ قسط کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے بہت زیادہ سپورٹ کریں۔ قسط کو سننے اور پڑھنے کے بعد رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ آپ سب کے کمنٹس پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو چلے قسط کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتش عالم از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 19۔ یہ منظر تھا ہاتھ کے آفس روم کا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، ہاتھ اپنی سربراہی کرسی پر جبکہ بنیامین میز کے اس پار دوسری کرسی پر۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموش رہے اور پھر ہاتھ نے بات کا آغاز کرتے ماحول کے سکوت کو توڑا۔ پرسوں سحر میرے پاس آئی تھی۔ بنیامین نے سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ نظریں احساس سے آ رہی تھیں مگر چہرے پر الجھن اور سوال تھے۔ دوسری طرف ہاتھ کا چہرہ بھی خالی تھا۔ پھر وہ مزید بولا۔ اس نے کہا مجھے اس سے نکاح کرنا ہوگا ورنہ وہ یہاں نہیں رہے گی۔ اب کی بار بنیامین کو کوئی حیرت نہ ہوئی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا یہ ہونا ہی تھا، یہ مطالبہ سحر نے کرنا ہی تھا۔ یقیناً آپ نے انکار کر دیا ہوگا اور ڈانٹا ہوگا میری معصوم بہن کو، بنیامین نے فوراً غصے سے کہا اور ہاتھ سے نظریں پھیر لی۔ اس کی بات پر ہاتھ بھی ہتے سے اکھڑا تھا۔ وہ اتنی بھی معصوم بچی نہیں ہے جتنا تم اسے سمجھتے ہو، جھانسی کی رانی ہے وہ، ہاتھ نے جل بن کر کہا۔ اور دوسری بات، میں اسے ڈانٹوں گا اور وہ اتنی معصوم ہے کہ خاموشی سے میری ڈانٹ سن لے گی بنا کوئی جواب دیے، کہیں وہ میرا سر ہی نہ پھاڑ دے۔ ہاتھ نے طنزیہ انداز میں کہتے سگار سلگایا اور پیچھے کرسی سے ٹیک لگائی۔ اس کے انداز پر بنیامین کو ہنسی آئی تھی جسے وہ مشکل ضبط کر گیا وہ، مگر اپنے ہنسنے کی کوشش کو ہاتھ کی زیرک نگاہوں سے چھپا نہ سکا۔ بنیامین حیرت زدہ سا اسے دیکھنے لگا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے سامنے ہاتھ بن رافع عالم بیٹھا ہے۔ پھر بنیامین نے کھوئے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں نے انکار کر دیا، ہاتھ نے ایک اور کش لیتے جواب دیا، اور نتیجہ سامنے ہے۔ اب اس کی آنکھوں میں ہلکی تکلیف ابھری تھی جو بنیامین نے بخوبی محسوس کی تھی۔ کیا یہ آنکھیں ہاتھ بن رافع عالم کی ہی تھی؟ وہ سوچ کے رہ گیا۔ وہ ریلنگ سے دوپٹہ باندھ کر بھاگ رہی تھی۔ اس نے 2 منزلہ عمارت سے نیچے لٹک کر سفر طے کیا۔ ہاتھ نے میز پر ہاتھ مار کے اسے بتایا۔ سحر کی حرکت پر وہ جی بھر کے غصہ تھا، وہ بھی اس طرف جہاں آگے وہ خاموش ہو گیا اور اس نے ضبط سے آنکھیں بند کی جیسے مزید بتا نہیں سکتا تھا۔ بنیامین نے چہرے پر بے شمار تکلیف لیے اس کی بات سنی تو یہ حادثہ اس طرح پیش آیا تھا اور اس کا مطلب اس سارے معاملے میں ہاتھ کا کوئی قصور نہ تھا، ساری بے وقوفانہ حرکت سحر کی ہی تھی۔ بنیامین نے تعصب اور درد سے اپنی پیشانی مس لی۔ سحر یہ کیا کیا تم نے؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ بنیامین تکلیف سے زیر لب بڑبڑایا۔ وہ ابھی اپنی ہی سوچ میں گم تھا جب ہاتھ کا اگلا کہا جملہ اس کے حواس سلب کر کے لے گیا تھا۔ میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بنیامین نے جھٹکے سے سر اٹھا کے آنکھیں پھیلائے دم ساتھ اسے دیکھا جیسے اس کے جملے کا یقین نہ آیا ہو۔ اسے لگا اس نے غلط سن لیا ہے، ہاتھ ایسا کبھی نہیں کہہ سکتا۔ پھر ہاتھ نے سگار ایش ٹرے میں مسلا اور دونوں ہاتھوں کو آپس میں باہم ملاتے ٹیک چھوڑی اور بنیامین کی طرف متوجہ ہوا۔ میں سحر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور تم سے تمہاری بہن کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ کیا تم سحر یوسف کو مجھے دو گے؟ وہ بنیامین سے سحر کا ہاتھ مانگ رہا تھا۔ وہ یعنی ہاتھ بن رافع عالم۔ لہجے میں نرمی تھی مگر آنکھوں میں خالی پن سا تھا، چہرے کے تاثرات سرد تھے جیسے وہ مجبوراً یہ سب کر رہا ہو۔ چلو مجبوری سے یا جیسے بھی وہ یہ کر تو رہا تھا۔ اس کی بہن بیاہی جا رہی تھی، وہ جسے اس نے بنیامین کی جان کے عوض لیا تھا۔ وہ چاہتا تو نہ نکاح کرتا، اس کی بہن کے ساتھ برا سلوک کر سکتا تھا، اس پر غلط نظر رکھ سکتا تھا، مگر اس کے برعکس وہ نکاح کے لیے راضی ہو گیا تھا اور وجہ سحر کا اٹھایا گیا یہ خطرناک قدم تھا۔
तो इसका मतलब सहर की तकलीफ से उसे फ़र्क पड़ता था, फिर भले ही वो उस बात को तस्लीम ना करता। दूसरी तरफ वो चाहता तो जिस तरह सहर उसके कब्ज़े में थी, उसे सहर से निकाह करने के लिए बिन्यामीन की इजाज़त की ज़रूरत ही ना थी, मगर वो बिन्यामीन को अपना फ़ैसला डायरेक्ट सुनाकर सहर को मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। इसलिए जिस तरह एक निकाह होता है लड़की के घर वालों की रजामंदी से, वो उसी तरह इस मामले को सरअंजाम देना चाहता था। सहर का गार्डियन बिन्यामीन यूसुफ था और इस निकाह में उसकी इजाज़त अहम तरीन थी। और यहाँ दी ग्रेट हाद बिन राफ़ी आलम अपनी गैंगस्टर गिरी को बलाए ताक रखते हुए इस मामले में जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहे थे, जो बिन्यामीन यूसुफ को बहुत पसंद आया था। फिर उसने फ़ौरन जवाब दिया, मुझे इस निकाह से कोई एतराज़ नहीं है। हाद संजीदगी से सर इस बात में हिला गया। जवाबन बिन्यामीन खुलकर मुस्कुराया। अब जब वो खुद अपने गले में मुसीबत डाल रहा है तो उसे क्या एतराज़ हो सकता था। बिन्यामीन ने अंदर ही अंदर महजूज होते सोचा, तो क्या वो सोच रहा था हाथ तंग आकर उसकी बहन वापस कर देगा या कुछ और। कुछ देर वो दोनों अपनी अपनी सोचों में घूम रहे। फिर हाथ बोला, फरहाद ताडर का क्या हुआ। उसके चेहरे पर संजीदगी ही संजीदगी थी। अभी मैंने उसे वार्न किया है, अगर उसने बात ना मानी तो तुम उसे जान से मारकर मेरे पास ले आओगे। हाद ने अगला हुक्म जारी किया था। जवाबन बिन्यामीन ने खाली नज़रों से उसे देखा। मगर हाद, मगर वगर कुछ नहीं बिन्यामीन। हाद ने उसकी बात काटी। उसकी फैमिली है हाद, बिन्यामीन ने समझाना चाहा। तो मैं क्या करूं? हाद खड़ा होकर चिल्लाया था। जिन लोगों के उसने घर बर्बाद किए हैं, उनकी ज़िंदगियों को उजेड़न किया है, उनसे उनका सब कुछ छीन लिया है, उनकी फैमिलीज नहीं थी क्या? उनकी बीवी बच्चे नहीं थे क्या? जवाब दो। बिन्यामीन खामोश रहा। जवाब दो। ठीक ही तो कह रहा था वो। तो क्या उसके बीवी बच्चे अर्श से उतर कर आए हैं जो उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी? हाद ने तमस्कुराना अंदाज में हंसते हुए पूछा। उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी, बिल ज़रूर, और उन्हें सज़ा देने वाला होगा हाद बिन राफ़ी आलम, क्योंकि हाद बिन राफ़ी आलम की अदालत में सोच समझ कर नहीं बल्कि डायरेक्ट फैसले किए जाते हैं, बिना सोचे समझे। समझ गए तुम? बिन्यामीन ने सर इस बात में हिलाया। गुड। इतने में हाथ को कॉल आने लगी। रिसीव करते उसने फ़ोन कान के साथ लगाया। बिन्यामीन जानता था कॉल शहरोज़ की है। उसने भी अपना ध्यान हाथ की तरफ कर लिया। उसकी कंपनी और बंगले दोनों को आग लगा दो। हाथ ने शहरोज़ को भी हुक्म जारी कर दिया। दूसरी तरफ ओके करते कॉल बंद हो गई। हाद, बिन्यामीन ने उसे पुकारा। अगले लम्हे स्याह भस्म कर देने वाली नज़रें बिन्यामीन यूसुफ पर थीं। फिक्र मत करो, वर्कर्स के चले जाने के बाद आग लगाएगा वो। उसके चेहरे की तकलीफ और उलझन देखकर हाद ने जवाब दिया तो वो सर झटक के मुस्कुरा दिया। सिर्फ तुम दोनों की वजह से, वरना मैं ऐसे करने का रवादार कभी नहीं रहा। हाद ने सख्त संजीदगी से कहा और जाकर ग्लास वॉल के पास खड़ा हो गया, क्योंकि उनमें उस मासूम जानों का कोई कसूर नहीं। बिन्यामीन नरमी से बोला, व्हाटएवर। गुस्से से ज़ेरे बड़बड़ाते वो गैर मरई नुक्ते को घूरने लगा। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला। उसने गर्दन तिरछी करके बिन्यामीन को बताया, 2 दिन बाद निकाह है। बिन्यामीन ने मुत्तफिक होते सर हिलाया, फिर दफ्तर से बाहर चला गया। उसका रुख जीनों की तरफ था। वो सहर के पास जा रहा था। आप यहीं थी? अपनी ड्रेसिंग कर रही डॉक्टर से सहर ने पूछा। जी, उन्होंने लफ्ज़ी जवाब दिया। जी आपके, उन्होंने हमें यहाँ पर 7 दिनों के लिए कैद कर लिया है। नर्स ने रोंदी सूरत बनाकर दुखी दिल से सहर को बताया, जिस पर रुखसाना भी मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। मेरे उन्होंने? सहर ने नासमझी से देखा, मगर बात के समझते ही पेशानी पर बल लिए उस नर्स को देखने लगी जो तकरीबन उसी की उम्र की थी। वो आलम मिस्त्री मेरे उन्होंने ही है, नर्स कर्स, सहर ने नत्थें भुलाकर कहा। हाथ की सी आंखें मुतबस्सम हुई थी। सिगार पीते वो ग्लास वॉल से हटा और जाकर वापस कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, मगर होने वाले तो है ना। सूप भरा बाउल लेकर रुखसाना भी सहर के पास बैठी बोली,
लहजे में शरारत थी। सहर ने दम साधे उन्हें देखा, जो अपनी हंसी छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आंटी आप भी? सहर ने खफा सा उन्हें देखते पूछा। अच्छा अच्छा मेरी बेटी, अब नहीं तंग करते, अब जल्दी से तुम ये पी लो, फिर तुम्हें दवाई भी खानी है, उन्होंने मोहब्बत भरे लहजे में कहा और सहर को सूप पिलाने लगी। आई, ये कितना अजीबोगरीब जायका है इसका, उसने मुंह बनाते हुए कहा। आज तक मुझे एक बार भी चोट नहीं लगी, मगर देखें उस आलम मिस्त्री के मेरी ज़िंदगी में आते ही मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है, सहर ने भीगे लहजे में कहा, जबकि हाथ ने संजीदगी से पहलू बदला था। अब भी तो मान गए ना, पहले मान जाते तो क्या हो जाता, खामखा मुझे उन कुत्तों से ज़ख्मी होना पड़ा। हाथ को अब उसकी कैंची की तरह चलती जुबान पर गुस्सा आ रहा था। वो कैसे उन्हें इतना सब कुछ बता सकती थी। वो मज़ीद खफगी से उन्हें बताने लगी। उन्हें ना बस आदत है पहले इनकार करने की, बाद में मान जाने की। हाँ, जैसे ये मुझे बहुत अच्छे से जानती है, तंज से कहते हाथ ने सिगार ख़त्म किया। सहर सिसकी थी, जिस पर हाथ की स्याह आंखें मुतगैर हुई थी। ये चुभ रहा है, उसने भीगी आंखों से डॉक्टर को कहा था, जो सहर के रुखसार पर दवाई लगा रही थी। कुछ सेकंड के लिए जलेगा, मगर फिर ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने नरमी से जवाब दिया। सहर मुश्किल बर्दाश्त कर गई। रुखसाना भी उसके रुखसार पर फूंक मारने लगी तो सहर हंस दी उनकी फिक्रमंदी पर। फिर अपना दर्द बुलाने के लिए वो दोबारा बातें करने की कोशिश करने लगी। उन्होंने, मेरा मतलब आलम ने आपको ज़बरदस्ती यहाँ रखा है? सहर ने दुख से नर्स को पूछा। आलम पुकार पर वो सर पीछे कुर्सी से टिकाकर सर्द सांस खारिज करता स्याह आंखों पर स्याही पलकों की बाढ़ गिराकर आंखें मूंद गया। उसकी वालिदा और बाबा उसे आलम ही कहा करते थे। आलम नाम उसके दादा जान का था। हाथ के बाबा राफे आलम और हाथ हूबहू अपने दादा जैसे थे। उनके दादा आलम सुल्तान एक बहादुर आर्मी ऑफिसर थे। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बेशुमार मिशन सर अंजाम दिए, मुल्क की बहुत खिदमत की और उनकी शहादत भी मुल्क के लिए लड़ते हुए ही हुई थी। हाथ के बाबा भी लेफ्टिनेंट थे। उसके बाबा मामा के बाद पहली बार उसे किसी ने आलम कहना शुरू किया था, और वो वजूद सहर यूसुफ का था। वो अपने माजी में खोया हुआ था। इससे पहले नर्स कोई जवाब देती, डॉक्टर बोल उठी, नहीं मिस, ऐसा कुछ नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ रुके हैं क्योंकि आपको अभी 7 डेज़ के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उन्होंने सहर को सच नहीं बताया क्योंकि उन्हें लगता था ये लड़की अब इस वजह से भी उस संकी आदमी से लड़ने लगेगी जो फ़िलहाल उसकी सेहत के लिए ठीक ना था। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, फिर 2 दिन बाद मेरा उस आलम मिस्त्री से निकाह है, तो आप भी मेरे निकाह में लाजमी शरीक होइएगा। सहर ने चह कर कहा था। मिस्त्री लफ्ज़ पर हाथ आंखें खोलता सरहनोज़ पीछे लगाए ही हल्की सी आवाज़ में हंसने लगा। रुखसारों में पड़ने वाले गड़े नमूदार होने लगे थे। फिर ज़ेरे लब गंभीर आवाज़ में बड़बड़ाया, अनकरीब मैं पागल हो जाऊंगा। मिस्त्री, आपकी मिस्त्री से शादी हो रही है क्या? नर्स ने हैरत से पूछा तो वो कहका लगा गई, हा हा हा, और उसके कहके पर दूसरी तरफ हाथ जल भुन गया था। करवाओ बेइज्जत सबसे, अब यही दिन देखने बाकी रह गए थे हाथ बिन राफे आलम के। नहायत गुस्से से ज़ेरे लब कहता दोबारा आंखें बंद किए उसकी खिलखिलाहटों को सुनने लगा। हाँ, है तो वो मिस्त्री ही, मगर काम एक ढंग से नहीं कर सकते। देखा नहीं इस सारे घर को स्याह कर दिया है। ऐसे घर बनाए जाते हैं भला? घरों को तो मुख्तलिफ रंगों से भर दिया जाता है जहाँ इंसान को सुकून महसूस हो। तो हुए ना नाकाम मिस्त्री, रश्क से कहने के बाद आखिर में मुंह बसोड़ गई। नर्स ने सर हाँ में हिलाया था। जी हाँ, काफ़ी खौफनाक लगता है ये घर। नर्स भी जल्दी से अपना दुख बयान करने लगी। और फिर तो आपको एक बार सोच लेना चाहिए मैम, सहर के बाजू की पट्टी बदलते नर्स ने फिक्रमंदी से कहा। इस नर्स को तो मैं जान से मार डालूंगा, ये मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ देगी। ये रुहेल कैसे डॉक्टर उठा लाए हैं? हाथ ने से आंखें खोलते तैश से कहा था। अरे नहीं, मैंने सोचा किसी और से भी तो निकाह करना ही है, तो क्यों ना इस गरीब मिस्त्री का ही भला कर दूं। क्या याद करेंगे सहर यूसुफ कितनी सखी थी। सहर ने खुलकर हंसते लबों पर हाथ रखते कहा था, जिस पर कमरे में उन तीनों के छत पाड़ कह के गूंजे थे। मैं गरीब हूँ? उसके पहले जुमले पर हाथ ने अपनी तरफ उंगली करते बेयकीनी से कहा, और फिर आखिरी जुमले पर बोला,
हाँ, जैसे तुम बड़ी मदर टेरेसा हो ना, जो मेरा भला करने चली हो निकाह करके। मुतबस्सम आंखें घुमाकर कहता वो लैपटॉप खोल गया। नहीं मैम, वो गरीब नहीं है, बहुत ही अलीना, शहर की मेडिसिन लाओ। डॉक्टर ने सख्ती से उसे घुड़का था, जो न जाने क्या ओल फोल बकने वाली थी। वो चारों हंसने में मसरूफ़ थी जब बिनियामीन उसके कमरे की दहलीज पर आमौजूद हुआ। उसका आखिरी जुमला उसने भी बखूबी सुना था। बिनियामीन ने नॉक किया तो डॉक्टर और नर्स खड़ी हो गई। शहर की वो ड्रेसिंग कर चुकी थी, इसलिए उसे दवा देती कमरे से बाहर चली गई। इसे ख़त्म कर लेना। शहर का सर सहलाकर सूप पीने का कहती रुखसाना बीबी कमरे से बाहर चली गई। बिनियामीन कदम कदम चलता कमरे में आया और शहर के पहलू में बैठ गया, जो बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठी थी। अब हाथ ने कान में लगे आले को उतार दिया था। दो बहन भाई क्या गुफ्तगू करते हैं ये सुनने का वो रवादार न था, और शायद अब उसे ये मैनर्स के खिलाफ लग रहा था। वो सिर्फ शहर की बातें सुनना पसंद करता था। बिनियामीन ने शहर का ज़ख्मी हाथ पकड़ा और उस पर अकीदत से बोसा दिया। अब कैसी तबीयत है? उसने नरमी से पूछा। मैं ठीक हूँ भाई, शहर ने आहिस्तगी से जवाब दिया। बिनियामीन खुद उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगा। उसे पूरा सूप पिलाकर बिनियामीन ने बाउल साइड में रखा, फिर बोला, हाद ने मुझसे तुम्हारा हाथ मांगा है, वो तुमसे निकाह करना चाहते हैं। शहर ने गौर से आंखें पिटपिटाकर बिनियामीन को देखा। तो क्या उस हाथ काद ने भाई को नहीं बताया कि मैंने उन्हें निकाह करने के लिए मजबूर किया है? उसने दिल में सोचा। उसे सोच में गुम देख बिनियामीन उस पर तासुफ कर गया। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने मुझे तुम्हारी कल रात की तमाम करतूत बता दी है। बिनियामीन खफगी से कहते चेहरा मोड़ गया, और उसके साथ ही शहर की खुशफहमी पर ओस पड़ गई। उसने फ़ौरन सुराब आंखों से तसव्वुर में हाथ को घूरा। मतलब वो किस शख्स से अच्छाई की उम्मीद कर रही थी? हाथ बिन राफ़े आलम से? तो उन्होंने आपको चुगली कर दी। बाज नहीं आए ना? वो आलम मिस्त। ऐसे नहीं कहते। अपनी गलती पर नादम होने की बजाय तुम इस तरह से सीना जोरी कर रही हो। तुम जानती हो तुम किस शख्स के बारे में ऐसे बात कर रही हो? हाथ बिन राफ़े आलम के, जिनसे सब डरते हैं, और तुम बदतमीज़ी करती हो। मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी शहर, बिनियामीन ने अफसोस से कहा। अरे भाई नहीं, इसी बात की तो जलन है कि मैं उनसे डरती नहीं हूँ, शहर ने गर्दन अकड़ा कर कहा था। मतलब बिनियामीन की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो तासुब से सर झटक गया कि उसे समझाना नामुमकिन सा अमर है। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? शहर ने झिझकते हुए पूछा और फिर नज़रें झुका गई। फिर बिनियामीन ने गहरा सांस लेकर कहा और कनखियों से शहर को देखा, जिसकी समात उसके जुमलों पर अटकी थी। फिर उसने नरमी से अपना जुमला मुकम्मल कर दिया। मैंने हाँ कर दी, और अपने जुमले के साथ ही उसने शहर के चेहरे के रंग बदलते देखे थे। बिनियामीन भी मुतबस्सम हुआ। वो इस बात पर खुश था कि वो ये निकाह ज़बरदस्ती, दबाव या मजबूरी से नहीं कर रही, बल्कि खुशी से कर रही है, क्योंकि वो मान गई थी कि उसे हमेशा आलम विला में ही रहना है। तो वो बिना किसी रिश्ते के क्यों रहती? फिर शहर आबदीदा हुई थी। भाई, आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? हाँ हूँ गुस्सा। जो कुछ तुमने कल रात किया उस पर बहुत गुस्सा हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? बिनियामीन ने कदरे गुस्से से बुलंद आवाज़ में कहा था। लहजा दर्द भरा था। शहर खामोश रही। मैं क्या करता शहर? कहाँ जाता? कहाँ ढूंढता तुम्हें? तुम्हें एक बार मेरा ख्याल नहीं आया? तुमने एक बार भी अपने भाई के बारे में नहीं सोचा? भाई, मैं यहाँ ऐसे नहीं रह सकती थी। शहर ने रोते हुए उसके हाथ थामे। तो क्या सिर्फ यही एक रास्ता बाकी बचा था उन्हें मनाने का? वो शर्मिंदा से सर झुकाते मिनमनाई। तुम्हें लगा अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तो वो मान जाएंगे, राइट? बिनियामीन ने सुर्ख सुराब आंखें उस पर गाड़ी। सॉरी भाई, उसके सीने में चेहरा छुपाती वो मज़ीद रोने लगी। मैंने आपको हर्ट किया, सॉरी, मुझे माफ़ कर दें। बिनियामीन उसके सर पे हाथ रखा और एक बोसा सरका लेते पुश्त सहलाई। असमारा कॉलेज से घर आई तो सहन में हर तरफ ढेर सारा शादी का सामान बिखरा पड़ा था। मेहंदी के बड़े बड़े शीशों से सजे थाल, मसनूई गेंदे के फूल से बनी लड़ियाँ, मिठाइयाँ, ढोलक और भी बहुत कुछ। शादी तो अगले महीने थी, फिर ये सब कुछ अभी से? मन में सैकड़ों सवालात गर्दिश करने लगे। वो तेज़ी से कदम उठाती अपने कमरे में गई, बैग उतारकर बेड पर रखती बाहर निकली और दादी के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में दाखिल हुई तो दादी, पुप्पो, अम्मी और अमरहा को हंस हंस कर आपस में बातें करते पाया। सामने मेज़ पर ढेर सारे लवाजमात थे। उसकी पुप्पो और सब चाय पी रहे थे।
पीछे बेड पर अरूसी जोड़ा और जेवरात पड़े थे। ये देख अस्मारा का दिल कट के रह गया। अस्मारा को देखते ही उसकी पुप्पो सदके वारी जाती हुई सोफे से उठी और उस तक पहुंची। अरे मेरी शहजादी बेटी आ गई। उसकी पेशानी चूमते वो उसे हिसार में लेते अंदर आई। आओ बैठो हमारे पास। उसे साथ बिठाकर सर सहलाने लगी। कैसी है मेरी बेटी? उसका हाथ थामकर उन्होंने मोहब्बत से भरपूर लहजे में पूछा। मैं ठीक हूँ पुप्पो। अस्मारा के लिए पुप्पो का प्यार देकर अमरहा अंदर ही अंदर कुड़ रही थी। अरे तुम्हारी अंगूठी कहाँ है बच्चे? अस्मारा का हाथ खाली देकर उन्होंने फिक्रमंदी से दरियाफ्त किया। वो मुझे बहुत तंग थी तो उतार के रख दी मैंने, अस्मारा ने रखाई से जवाब दिया। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम ऐसा करना, मुझे वो अंगूठी देना, मैं तुम्हारे लिए बड़े साइज़ की बनवा कर ले आऊँगी, उन्होंने प्यार से कहा। अस्मारा खामोश रही। फिर अस्मारा ने दादी की तरफ देखा और बोली, वो बाहर सामान। लहजा दर्द भरा था। वो तुम्हारी शादी का सामान है, दादी की जगह जवाब निधहत की तरफ से आया था। मगर शादी में तो 1 महीना बाकी है ना अभी, अस्मारा ने फ़ौरन पूछा। हाँ मगर सफदर भाई चाहते हैं शादी जल्दी हो जाए, इसलिए उन्होंने अब्बा से बात की और वो मान गए और शादी 1 महीने की बजाय 15 दिन पहले होनी तय पाई है। अमरहा ने पूरा मामला फ़ौरन अस्मारा के गोशो गुजार कर दिया। चेहरे पर चमक सी थी उसके। अस्मारा ये सब सुन के फ़ौरन अपनी नशिस्त से उठ खड़ी हुई। क्या? मगर कैसे? दादी अगले महीने मेरे पेपर हैं। अस्मारा ने तड़प कर अपनी दादी की जानिब देखा। दादी ने अस्मारा को देखते अपनी नज़रें चुराई थी और कोई जवाब न दिया। तो क्या बच्चे, शादी 15 दिन बाद है और पेपर तो शादी हो जाने के भी 15 दिन बाद हैं, तो परेशानी कैसी? तुम आराम व सुकून और तसल्ली से अपने इम्तहान देना, और अगर तुम आगे भी पढ़ना चाहो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है मेरी शहज़ादी। मेरे भाई की इकलौती निशानी हो तुम, तुम्हें किसी तरह की भी तकलीफ़ तो मैं समझूंगी वो तकलीफ़ तुम्हें नहीं, नूर मोहम्मद को पहुंची है। अस्मारा की पुप्पो ने खड़े होते उसका चेहरा हाथों में भरते एक एक हर्फ नरमी से अदा किया। उसकी आंखों से आंसू टूटकर गिरे थे। फिर अस्मारा 2 कदम पीछे हुई और जाने लगी। कहाँ जा रही हो बेटा? मुझे यूनिफॉर्म चेंज करना है, अस्मारा ने उखड़ते सांस के साथ कहा। फिर एक दर्द भरी नज़र उसने अपनी वालिदा और दादी पर डाली। उसके बाद वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। तेज़ तरीन उठते कदम और धुंधली आंखों से वो बाहर निकली और ये ना देख सकी कि सामने से सफदर आ रहा है। सफदर ने अस्मारा को आते देख लिया था और उसकी बेख्याली भी नोट की थी, मगर वो घुन्ना बना उस ओर चल दिया। अस्मारा सफदर के वजूद से जा टकराई। सर उसके वजूद से टकराया तो वो चकरा सी गई और पीछे को जा गिरती जब वो बर वक्त उसे कमर से थाम कर गिरने से रोक गया और गहराई से मुस्कुराने लगा। या अल्लाह, अस्मारा ने ज़ेरे लब कहा और अपनी पुश्त के गिर्द खुरदरी उंगलियों का लम्स महसूस करते उसने फ़ौरन मीची आंखों को खोला। जब सामने देखा तो उसका रोम रोम जल उठा था। वो सफदर जमाल पूरे दांतों के साथ मुस्कुराता उसे ही देख रहा था। अस्मारा ने फ़ौरन उससे खुद को पीछे झटका। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अपनी चादर सर पे दुरुस्त करती वो गुस्से से गोया हुई। अगर मैं तुम्हें ना थामता तो तुम गिर जाती स्वीटी, सफदर ने शरीर लहजे में कहा, क्योंकि तुम अंधाधुंध दौड़ी चली आ रही थी। गोया कोई भूत देख लिया हो, या लगता है मेरी मोहब्बत में तुम अंधी हो गई हो जो दिखना छोड़ गया है। सफदर ने हंसते हुए उस पर चोट की। अस्मारा बिना जवाब दिए साइड से गुजर कर जाने लगी। जब वो बाजू फैलाकर उसका रास्ता रोक गया। क्या हुआ? बात तक करना गवारा नहीं है क्या? वो सख्त लहजे में बोला था। अस्मारा की यूं उसे इग्नोर करने पर वो जल उठा था। जवाबन अस्मारा ने रास्ता रोक लेने पर उसे तेज़ नज़रों से देखा तो उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। उफ़, तुम्हारी ये शहद रंग नज़रें मुझे घायल कर देती हैं अस्मारा, सफदर ने सीना मसलते कहा। यहाँ फिर उसने उंगली दिल के मुकाम पर रखी। यहाँ से दर्द उठता है, कसम से क्या कहूँ। वो लब भींच गया। फिर अंदर तक उतर जाने वाली नज़रों से उसे देखने लगा। उसकी नज़रों से अस्मारा को वहाँ सांसों की कमी महसूस होने लगी। दिल बंद होने लगा। वो तेज़ी से उसका बाजू झटकते अपने कमरे की ओर दौड़ गई। सफदर सुलगती नज़रों से जाते हुए उसे देखता रहा। क्या है ऐसा मुझ में अस्मारा जो तुम मुझसे इतना दूर भागती हो? उसने नफ़रत से सोचा। मगर मैं भी सफदर जमाल खान कसम खाता हूँ तुम्हें हासिल करके ही दम लूँगा। तुम्हें ज़ेर करने में बहुत मज़ा आएगा। मूँछों को ताव देते वो अंदर कमरे में चला गया। रात समय निदहत अलमारी में तयशुदा कपड़े रख रही थी। जुनैद बेड पर बैठे कुछ रजिस्टर देख रहे थे।
کارخانے کے ملازموں کی حاضری دیکھ وہ ان کی تنخواہ کی لسٹ تیار کر رہے تھے۔ پھر سرسری سی نظر اٹھا کر الماری میں مصروف ندہت کو دیکھا تو اس دن کہا اپنا جملہ سماعت سے ٹکرا گیا، ورنہ میں ندہت کو طلاق دے دوں گا۔ اس جملے کے زیر اثر اس وقت جو تکلیف انہوں نے ندہت کی آنکھوں میں دیکھی تھی شاید ہی ان 15 سالوں میں دیکھی ہو۔ اس دن کے بعد ندہت نے جنید کو بلانا چھوڑ دیا تھا اور یہی بات انہیں کھل رہی تھی۔ وہ ان سے محبت کرتے تھے، انہیں چھوڑنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کی خود غرض محبت پر بھاری تھی۔ ندہت، انہوں نے ندہت کو پکارا۔ وہ پلٹی، جی، اور بنا انہیں دیکھے جواب دیا، یہاں آؤ۔ اس جملے پر ان کا دل دھڑکا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی جا کر ان سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھ گئیں۔ صفدر نے ہاتھ بڑھا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھ سے ناراض ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، میرا ایسا کوئی حق نہیں، ندہت نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا اور اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا ندہت، مگر میں کیا کروں، میں آپا کو زبان دے چکا ہوں، اب اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ندہت سر ہلاتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دیکھتا ہوں، صفدر اٹھنے لگے۔ نہیں، میں دیکھ لوں گی، کہتے ندہت دروازے کی جانب بڑھیں۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی اسمارا کھڑی تھی۔ اسمارا کو دیکھ کر جنید کی آنکھیں خالی ہوئی تھیں۔ وہ پرسوں سحر کا نکاح ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ اسمارا نے فوراً اپنا مطالبہ ان کے آگے رکھا۔ ندہت خاموش رہی۔ وہ اسمارا کو اجازت دینا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے وہ کچھ بولتی وہ کب سے سنائی دینے والے جملے پر ساکت ہی رہ گئی تھی۔ تم نکاح پر جا سکتی ہو، تیار ہو جانا، میں تمہیں اور موہت کو چھوڑ آؤں گا۔ جنید نے اسے جانے کی اجازت صرف ندہت کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے دی تھی۔ وہ جانتے تھے وہ اسمارا کو اجازت دینا چاہتی ہے اور انہوں نے یہ صرف ندہت کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ ندہت کو مسکراتے دیکھنا چاہتے تھے۔ اسمارا خاموشی سے جس طرح آئی اسی طرح واپس چلی گئی۔ جاری ہے۔ چیلنج ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پڑھ کے سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔